Afternoon, respected members, our panelists, and viewers. I am Trupti from Team CRIDAI MCHI with my co-host Charmi. Thank you for joining us today on a very special webinar with Leader of Opposition, former Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis ji. This is the 12th episode of CRIDAI MCHI webinar, Key to Lockdown. And the key to lockdown is staying connected. I also take this opportunity to thank and express our gratitude towards everyone working at the front line and helping us stay safe. That is, our doctors, police force, Swachhata workers, people providing us with continuous supply of food and milk, our volunteers, government officers, and everyone risking their lives for us. Now I request our President-elect, Mr. Deepak Goradia, to take over the screen. Thank you, Trupti. Good afternoon, all. We welcome our Chief Guest, Devendra Fadnavis ji, Leader of Opposition in Maharashtra State Assembly and former Chief Minister for last 5 years. Sir, you do not require any introduction. Devendra Fadnavis ji graduated in law, graduated in business management. He began his political career, became the youngest mayor of Nagpur Municipal Corporation. He represented Nagpur Assembly since 1999. He was appointed Chief Minister of Maharashtra from 2014 to 2019. He became the second youngest Chief Minister in Maharashtra. We again welcome young dynamic personality Shri Devendra Fadnavis ji. I welcome all panelists and members of CRIDAI MCHI and CRIDAI Maharashtra. Now, I invite our keynote speaker, Shri Nayan Shah, President CRIDAI MCHI and CMD Mayfair Housing, to say a few words. Over to Nayan. Thank you, Deepak. Thank you very much. Respected Sri, it's a matter of great honor for CRIDAI Maharashtra and CRIDAI MCHI that you are amongst us today. We extend you the heartiest warm welcome and thank you for sparing your most valuable time for this webinar today. The topic for today is effect of COVID in real estate in Maharashtra. Hello. 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 Yes. I'm sorry I got disconnected. The whole country. Our fight against technology aside and all have united. We are on a mission mode today. So has been the spirit in Maharashtra. Every stakeholder in Maharashtra have also united themselves to fight COVID-19. Also doing a small bit in assisting Then based on mute. Sir, it has, sir, a 4-point strategy that CRIDAI MCHI has been supporting the corporation and the state government. Number 1 is on awareness, that is prevention. Number 2 is increasing the capacity for isolation beds. Sir, the MCGM Center for Municipal Capability Building and Research at Powai, popularly known as
are doing well. Will be discharged. Have handed over their ready buildings for ITs. Marathon developers have handed over 1100 units at Panvel. Uptown, Vimalbhai has offered almost 500 units. Mr. Narendra Bhatia handed over his commercial building for about 700 workers. Third, sir, about 70,000 construction workers, laborers. Nayanji, there seems to be some issue with your internet connection. We are not able to hear you constantly. We will move to the next speaker and we'll come back to you when you have a stable internet connection so that the public can hear you well, sir. Deepak ji, can you just move on? Deepak Garudia ji? Yeah, I'll take it next. We'll take you once your internet connection gets stable. May I call Shri Mangal Prabhat Lodha ji, current President, Bharatiya Janata Party, Mumbai Unit, also member of Legislation Assembly and founder of Lodha Group, the largest developer in India. I request Lodha ji to say a few words. लोढ़ा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज. अनम्यूट है सर? नहीं? हाँ जी सर, या वी कैन हियर यू. हाँ, माननीय देवेंद्र जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं. मैं बाकी सब पैनलिस्ट को बोलना और माननीय देवेंद्र जी को सुनना चाहते हैं. मैं चूंकि उनकी पार्टी का हूं इसलिए नहीं है, पर मैं मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने इतना इंटेलिजेंट और खास करके जिसको फाइनेंस की इतनी समझ हो, ऐसा कोई पॉलिटिशियन ना महाराष्ट्र में देखा ना देश के अंदर देखा. हमारा सौभाग्य है कि एमसीएचआई क्रेडाई को बार बार उनसे कम्युनिकेशन करने को मिलता है. मुझे लगता है कि अब हमको जो मिलेगा, कब मिलेगा, तब मिलेगा, मुझे मालूम नहीं है, पर लास्ट 1 साल का यदि हम डिटेल निकालते हैं तो रेडिकल डिसीजन देवेंद्र जी ने लिए थे. उसमें कई सारी चीजें कम करके मुंबई के अंदर, मुंबई के आसपास के इलाकों के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी दी थी. और यही नहीं, जो कॉमन डीसीआर बनाने का काम था, सिंपलाइजेशन था, पावर का सब नीचे डिसेंट्रलाइजेशन था, ये सब एक्चुअल में हुआ. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कंसेप्ट भी उस समय आया. मैं यहाँ पर दीपक जी ने देवेंद्र जी को इंट्रोड्यूस कराया है, पर कई सारे हम लोग तो देवेंद्र जी से मिलते रहते हैं, पर जो लोग उनसे नहीं मिलते और आज उनको सुन रहे हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि वी आर मीटिंग ए पर्सन हु इज इन पॉलिटिक्स बट नॉट ए पॉलिटिशियन. And we hope that this deliberation will take us more nearer to him, and we will be able to explain our problem him, and not only explaining, but we'll move forward with some solutions at Maharashtra level as well as the central government level. Thank you. Thank you, Lodha ji. Nayan bhai, is your connection is fine, or we take it further? No, I can be there. So would you take it further about continuity of your presentation? Hello. Take it further. Yes, I can take it further. So, sir, CREDAI MCHI has been at the forefront of assisting the municipal corporation and the state government in the relief for COVID, sir. And we have been doing this in 4 ways. Number 1 is awareness. Into a 250 bed facility. Sir, as of now, there are 249 patients. 21 have already been discharged. 130 government staff are working over there. Even
So all the hoardings that you see in Mumbai are in blue color, have been executed by CREDAI MCHI. The third way in which we have assisted the corporate. Nayan, there is some issue with the connection. Unable to hear you. The voice is an issue. We can't hear you. The third way in which we have assisted the corporation is to give work our ready units for the isolation beds and for the migrant workers. Hello. There is an issue with the voice. I think I don't know what's happening. Hello. Deepak, Can you hear me? Deepak and Nayan, can I request that people like to hear Mr. Fadnavis? Yeah, I'll definitely. Yeah. We should request her too. Now, sorry for interruption. Now, may I request our chief guest, Honorable Shri Fadnavis ji, to guide us. Thank you, Deepak bhai. Namaskar to all of you. I think I must thank MCHI CREDAI for this initiative, this webinar. In these difficult times, you are trying to connect everybody and also to strategize for future, because I think the lockdown is a temporary phase and the real challenge will come after the lockdown is over. And for that, we need to prepare ourselves. Also, very happy to know that, as usual, MCHI CREDAI have been participating towards the cause. And I must acknowledge that while I was Chief Minister for the past 5 years, I've always seen that wherever we have come up with any cause, whether it is in housing industry or whether it is a social cause, MCHI CREDAI has always been on forefront and has always contributed to the cause. And now also in the difficult situation of COVID-19, as Nayan bhai was telling us, I think although he was inaudible for some time, but through the presentation, we could gather how much work you have been doing in helping the MCGM and the state government. So I congratulate you all for this initiative. Having said that, I think the clear indication given by our Honorable Prime Minister in his last address to the nation, that he wants the nation to start doing business ASAP. And I think from 20th, it seems that we will get some relaxations, at least in non-hotspot areas. And based on our strategies of tackling COVID and the improvisation in the condition and statistics, I think things would start opening up. And let's hope that after the 3rd, the entire nation opens up. Although all of us know that the situation in Mumbai and MMR region is still a little difficult. But I think with all our efforts, all the efforts put in by the government, by the MCGM, and by the civil society as well, I think we will be able to come out of this situation. Right now, I think if you look at the entire realty sector, there cannot be a more difficult time, because when we started COVID, we already were facing certain difficulties in the realty sector.
And to top it, now the challenges which COVID has offered now requires a very dedicated and focused strategy to bring back the entire sector on track. I'm sure with all your efforts and with all the deliberations, we'll be able to pull in a strategy for that. Normally, I know that once COVID is over or the lockdown is over, almost all sectors will try to reach out to government, and there will be a number of demands from every sector, and which is right, because every sector feels that they need revival package, they need revival incentives, and the government will have to prioritize. So sorry to intervene. If you can speak even in Hindi also, members would appreciate that. Okay, that's great. तो मुझे लगता है कि जैसे ही कोविड समाप्त होगा तो सारे के सारे अलग अलग सेक्टर्स जो है ये सरकार से अपेक्षा व्यक्त करेंगे कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उस सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए कोई निर्णय हो, कोई पैकेजेस हो, और सरकार के सामने भी एक चुनौती होगी कि एक और बिजनेसेस को वापस लाना है, अर्थतंत्र का जो चक्र है उस चक्र को फिर एक बार तेजी से घुमाना है, और ऐसा करते समय सरकार के जो क्षमताएं है, जो रिसोर्सेस है, उसका इस ढंग से डिप्लॉयमेंट करना है कि जिससे अर्थतंत्र चले और जो एब्रेशंस है उसको हम दूर कर पाए। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि पहली प्रायोरिटी, चाहे वो सरकार हो, चाहे हमारे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आरबीआई हो, इनकी ये हो सकती है कि हमको इस प्रकार से मदद करे कि जिससे ये जो रुका हुआ चक्र है ये चलना शुरू हो जाए, जिससे हम रिकवर हो सके। सरकार हमको इतनी मदद जरूर कर सकती है कि जिससे हम डिमांड क्रिएट कर सके, हम सप्लाई साइड में चूंकि जो कुछ एनपीएस हुए हैं या स्ट्रेस्ड एसेट्स हुए हैं, इसका जो एक प्रश्न खड़ा है जो पहले से खड़ा था और अब वो ज्यादा जटिल होने वाला है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिले। अब हमारी जो डेडलाइंस हमने दी हुई थी उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो हमारे रेगुलेटर को भी उसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हम लोगों को एक स्ट्रेटेजी ऐसी तैयार करनी पड़ेगी कि जिस स्ट्रेटेजी के चलते हम लोग 1 साल, 6 महीने, 3 महीने इसमें क्या क्या करें, इसका विचार भी हमको करना पड़ेगा। जैसे कुछ चीजें तो मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूं तो मेरे ध्यान में आती है, विशेष रूप से जीएसटी के बारे में लगातार ये मांग उठती है कि 5% जीएसटी होने के बाद जब इनपुट क्रेडिट बंद हो गया तो उससे कीमतें बढ़ी, क्योंकि एक अतिरिक्त भार हमारे ऊपर आया क्योंकि इनपुट नहीं मिल रहा है, और उसका एक स्ट्रेस बड़े पैमाने पर डेवलपर्स पर और रियल्टी सेक्टर में काम करने वाले लोगों पर आने के कारण एक बड़ी समस्या हमारे लिए निर्माण हुई। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि
दुनिया देश की जो रियलिटी है उसकी अपनी नीड्स है, और मुंबई की रियलिटी और दिल्ली की रियलिटी इसकी भी अपनी अलग अलग नीड्स है। तो वो अगर ध्यान में हम रखेंगे तभी हम लोग रिवाइव कर पाएंगे। सरकारों को भी ये ध्यान में लेना पड़ेगा कि मुंबई की एक अपना वजूद है, मुंबई की एक अपनी पद्धति है, ये एक लैंडलॉक सिटी है, इसमें एक लैंड या स्केर्स एसेट है, और इसलिए इसके लिए जो नीतियां बनती है उन नीतियों का थोड़ा विचार भी हमको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो लगातार बात आती है जीएसटी के संदर्भ में, बिल्कुल ठीक बात है, और मुझे लगता है कि मैं भी स्वयं ये प्रयास करूंगा कि केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास, दोनों के पास इस बात को रखकर हमारे राज्य सरकार भी केंद्र में इस प्रपोजल पर थोड़ा बल दे और केंद्र सरकार भी इस पर एक सकारात्मक विचार करे, ये प्रयास भी हम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्व की चीज अभी जो आएगी वो स्ट्रेस्ड एसेट के बारे में आएगी। अभी आरबीआई ने कुछ फैसले किए, आज भी कुछ फैसले किए हैं, रेपो रेट पे चेंज किया है, कुछ मॉनेटाइजेशन का प्रयास भी आरबीआई ने किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब विशेष जिम्मेदारी हमारी बैंकों की होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से और विशेष रूप से एनपीए क्राइसिस जो हुआ उसके बाद बैंकों ने बहुत ही ज्यादा सेफ फाइनेंसिंग शुरू किया, और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक बैंकें बोल्ड स्टेप्स नहीं लेगी, क्योंकि कोविड से अगर हमको बाहर आना है और कोविड से जो हमारा चक्र रुक गया है, मतलब हम कई बार गाड़ी से जब हिल पर चढ़ते हैं और अचानक ब्रेक मारना पड़ता है तो हमारा ड्राइवर कहता है कि साहब मौसम टूट गया, तो उसका कहना है कि मोशन हमारा खत्म हो गया, तो कहता है मौसम टूट गया। ऐसा हमारे क्षेत्र का भी मौसम ये कोविड के ब्रेक ने तोड़ा है। तब अगर उसको मोशन में लाना है तो बिजनेस यूजुअल से वो नहीं आ पाएगा, और इसलिए मेरी भी अपेक्षा ये होगी कि बैंकिंग सेक्टर को बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेस्ड एसेट्स होंगे, एनपीएस होंगे, इनके ऊपर विचार करते हुए इनको हम कैसे बाहर निकालें, क्योंकि हम लोग जब इनको लॉक करते हैं तो उसके साथ साथ इतनी बड़ी इन्वेंट्री लॉक होती है, इतने बड़े रिसोर्सेस लॉक होते हैं, और इतना बड़ा प्रायर इन्वेस्टमेंट लॉक होता है कि जिसका आज हमें ध्यान में नहीं आता, लेकिन बाद में जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है वो हमारे देश के ऊपर बड़ा होता है। इसलिए कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि जो एसेट्स इस कारण से स्ट्रेस हुए हैं, चाहे कोविड हो या उसके पहले की जो परिस्थितियां बनी हो, उसके लिए अलग विचार ये निश्चित रूप से हमारी बैंकों को करना पड़ेगा, और रिजर्व बैंक को थोड़ा एसर्टिव रोल लेना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर रिजर्व बैंक ये कहे कि वी अलाउ द बैंक्स, और अलाउ द बैंक्स कहकर छोड़ दे, एज अ रेगुलेटर इफ दे जस्ट डीरेगुलेट अ लिटिल बिट और ये समझे कि बैंक ये करेगी, तो मुझे लगता है आज की परिस्थिति में बैंकें नहीं कर रही है। क्योंकि हमने देखा कि रेपो रेट में चेंज के बाद उसको पास ऑन करने में एसबीआई थोड़ी सामने रही, लेकिन बाकी बैंकों ने जितनी ताकत से उसको करना चाहिए नहीं किया। तो रेगुलेटर को अभी एनफोर्समेंट का काम भी करना पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट जस्ट डीरेगुलेटिंग और गिविंग कंसेशंस, but it is more about enforcing those concessions by saying that it is not mere advisory. तो ये करना ही है, ऐसा रोल मुझे लगता है आरबीआई को आने वाले दिनों में लेना पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों को आने वाले दिनों में विशेष रूप से ये भी बहुत महत्व का है कि वर्किंग कैपिटल, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चूंकि हमारे सारी इंडस्ट्री में हमारा कॉन्सेप्ट टर्म लोन का है,
और इसलिए नॉर्मल वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट चलता है उसमें हमको फायदा नहीं होता। तो उसका भी विचार आरबीआई को और बैंकों को करना पड़ेगा, और इस क्षेत्र में हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल ये कैसे इन्फ्यूज कर पाए, क्योंकि जब चक्र रुकता है तो अभी तो एसेट स्ट्रेस्ड होंगे। आज कुछ रियायतें उसमें दी है, लेकिन मुझे लगता है जो रियायतें आज दी है उसका समय कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये मान भी ले कि मई में लॉकडाउन पूरा खुल जाए, तब भी मुंबई जैसे शहर में हम लोगों को, या एमएमआर रीजन में हम लोगों को अभी की परिस्थिति में बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ समय लगेगा, और उस समय के चलते चलते शायद मॉनसून आ जाए। और दूसरा हमारे सामने ये भी प्रश्न उठ सकता है कि लॉकडाउन के बाद बड़े पैमाने पर लेबर अगर चला गया, जिसके थोड़े बहुत आसार तो है, तो उससे भी एक संकट हमारे सामने खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई को इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, और उस दृष्टि से हम सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी जिस प्रकार से केंद्र की सरकार निर्णय कर रही है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को समझकर केंद्र की सरकार निर्णय कर रही है, इसलिए मुझे ये विश्वास है कि ये जो सारे हमारे सामने मसले हैं, इसके ऊपर केंद्र की सरकार जरूर विचार करेगी। राज्य की सरकार से भी मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि अभी तक हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा किया है, और वो आप लोगों के कारण ही हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब उससे 2 कदम आगे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जब परिस्थितियां अलग होती है, डिफिकल्ट होती है, ऐसे समय नॉर्मल सॉल्यूशन काम में नहीं आते। ऐसे समय हमको नए सॉल्यूशन डिजाइन करने पड़ते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नए सॉल्यूशन हमको डिजाइन करने पड़ेंगे, और सरकार को यह भी ध्यान में लेना पड़ेगा कि अगर हमारी ये जो रियल्टी में काम करने वाली कम्युनिटी है, इसके पास पैसा आएगा तो सरकार के पास पैसा आता ही आता है, और इसलिए पहले ये प्रयास करना पड़ेगा कि इसके पास पैसा कैसे है। और इसलिए केवल सप्लाई साइड पर नहीं, तो सप्लाई और डिमांड साइड, ये दोनों पर हमको काम करना पड़ेगा। डिमांड कैसे इंक्रीज हो, इसका भी विचार करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में विशेष रूप से हम लोगों को जो स्टैंप ड्यूटी है, इसमें भी अनप्रेसिडेंटेड कट करना चाहिए, अनप्रेसिडेंटेड। और दूसरा, हम लोग जो कई बार रेडी रेकनर के नीचे सौदे करते हैं, उसमें जो डिफरेंशियल पे इनकम टैक्स हमको देना पड़ता है, मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार से बात करके उसमें भी एनहेंसमेंट हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो सारा चक्र चलाने के लिए डिमांड अगर क्रिएट करनी है, तो लोगों के ध्यान में ये लाकर देना पड़ेगा कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। क्योंकि अभी बैंकें भी रेट कम कर रही है, ब्याज का रेट भी कम है, प्रॉपर्टी का रेट भी कम है। ऐसा सारा एक इंसेंटिव अगर क्रिएट होगा तो डिमांड क्रिएट होगी। जब मार्केट में लगेगा कि दिस इज द राइट टाइम, हम बाकी चीजें बाजू रखकर अभी इस चीज को करें, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय इसका फायदा निश्चित रूप से होगा। और इसलिए ये भी बहुत आवश्यक मुझे लगता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार का कट। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि पिछले समय हम लोगों ने डेलिब्रेशंस करके प्रीमियम्स और बाकी चीजों के ऊपर भी काफी चर्चा है कि कुछ उसमें हमने उसको कट भी किया। लेकिन अब मैं ऐसा मानता हूं कि सारे मामलों में भले ही सनसेट क्लॉज डालकर 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, जो भी हो,
लेकिन अनप्रेसिडेंटेड कट यही सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके सिवा ये जो हमारा चक्र है ये हम वापस ला नहीं सकते, तो उसका भी विचार करना पड़ेगा। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि सरकार जब, और विशेष रूप से मैं हमारे अधिकारियों को भी कहता था कि आप लोग जब विचार करते हैं कि पैसा आना चाहिए और सिर्फ बढ़ाते जाते हैं, इससे कभी पैसा आता नहीं है, उतना ही पैसा आता है। आप कट करके वॉल्यूम्स तैयार कीजिए तो पैसा आएगा। और हमने कई बार देखा, जब हमने कट किया तो वॉल्यूम्स आए हैं। और अब तो मुझे लगता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार की परिस्थिति है, तो इसका भी विचार हमको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि केवल हमारा रियल्टी का क्षेत्र नहीं, तो कोविड के बाद जैसे हमारे सामने चैलेंजेस है, वैसे कई अपॉर्चुनिटीज भी हमारे सामने आने वाली है। और विशेष रूप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये इसलिए भी की होगा, जैसे आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा कि अभी जो चाइना में काम करने वाली जापानी कंपनियां हैं, 37% कंपनीज के सीईओ ने कह दिया कि वी वांट टू लीव चाइना। और एक बहुत बड़ा पैकेज आज जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने एग्जिट के लिए दिया है। दे ऑल्सो वांट जापानीज कंपनी टू एग्जिट चाइना। यही परिस्थिति अभी यूएस कंपनियों के साथ भी हो रही है। और मोर ओवर सभी को यह लगता है कि अभी जिस प्रकार से संकट आया और जिन्होंने सारे एग बास्केट में रखे थे और चाइना में रखे थे, उनके ध्यान में आया कि उनका पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है। और ऐसे समय बड़े पैमाने पर चाइना से बिजनेसेस बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और करने ही वाले हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने देश के लिए है। और साधारणतः अगर हमने देखा तो पिछले समय चाइना से जो बाहर निकले, उन्होंने वियतनाम, मेक्सिको और इंडिया, भारत, ऐसे 3 प्रेफरेंसेस इसी क्रम में रखे हुए। लेकिन भारत इसमें 1 नंबर पे आ सकता है बशर्ते हमारी स्टेट्स जो है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम स्टेट्स को करना पड़ता है। तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अगर हमारी स्टेट्स इस बात का विचार करें, तो मुझे लगता है कि इससे बड़े पैमाने पर हमारे यहां पर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इंडस्ट्री आएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी। और इससे भी जो हमारा इन्वेस्टमेंट का माहौल है, वो माहौल बड़े पैमाने पर हम बदल सकते हैं। मैं कुछ अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात कर रहा था और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई कि अभी चूंकि कोविड के बाद भले ही हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में हो, लेकिन सारे देश ट्रेड बैरियर्स के मोड़ में जाएंगे। और ऐसे समय भारत के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम भी 130 करोड़ का एक मार्केट है। और अगर हम भारत में यह भावना जागरूक करते हैं स्वावलंबन की, कुछ समय के लिए बी इंडियन बाय इंडियन, भारत में बनी हुई चीजें हम खरीदें, घूमने के लिए भी भारत में जाए, जो स्पेंड करना है भारत में करें, ऐसा। और वैसे भी अभी विदेश में जाना बहुत खतरे से खाली नहीं है। तो कुछ समय के लिए अगर ये विचार साल, 1.5 साल, 2 साल हम बिल्कुल प्रमोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे सेक्टर की डिमांड हम लोग बढ़ा पाएंगे। और साथ साथ अभी चूंकि आने वाले दिनों में मॉनसून आएगा,
पुराना जो लोगों ने उनका फार्म प्रोड्यूस कट किया है वो सरकार को तुरंत खरीदना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो खरीदा नहीं गया है। और हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि अभी अभी आईएमडी ने कहा है कि इट विल बी अ नॉर्मल मानसून। तो नॉर्मल मानसून अगर हमारा रहा तो हमारा एग्रीकल्चर का क्षेत्र ये अच्छा ग्रो करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जीडीपी में भले ही एग्रीकल्चर सेक्टर का कुल हिस्सा ये 16% 17% होगा, पर एग्री सेक्टर से जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण जब भी हमारा एग्री सेक्टर ठीक काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उससे कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है। और कंज्यूमर डिमांड बढ़ना ये भी हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि आज हमारे मॉल्स की जो परिस्थिति है, मुझे लगता है कि अब मॉल्स और रेंटल्स इस पर भी पुनर्विचार और एक नई स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एक शॉक लगा हुआ है जिससे वहां की भी इकोनॉमी और इकोनॉमी का साइकिल ये थोड़ा टूटा है, तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि भले ही हम लोग एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, पर हम लोग ये सोच ले कि ये डिफिकल्ट टाइम ऑफ द लाइफ है। हम नीचे नीचे जाकर इससे नीचे नहीं जा सकते। वी हैव टू बाउंस बैक। हम वापस ही आने वाले हैं। और इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई अंधेरी खाई है। ईच वन ऑफ अस कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। नाउ विथ आवर स्ट्रेटेजीज वी हैव टू मूव वेरी फास्ट थ्रू दिस टनल। और इस टनल से बिल्कुल तेजी से अगर हम बाहर निकलेंगे तो आने वाले समय की स्ट्रेटेजीज केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों साथ में मिलकर एक एक क्षेत्र का अगर विचार करेंगे तो मेरा विश्वास है कि न केवल हम इसमें से बाहर आएंगे, बल्कि हमने जो अपने सामने गोल्स रखे थे 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, इसमें भी हम लोग सफल हो पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि हमारी जो रियल्टी में काम करने वाली सारी कम्युनिटी है, इन्होंने हमेशा ऊंच नीच देखा है, हर परिस्थिति से आप लोग बाहर आए हैं। और मैं अपनी ओर से आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ में हैं और आपके अधिवक्ता के रूप में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपकी बातों को वहां पहुंचाना, उसकी एडवोकेसी वहां करना। और चूंकि मैं वकील बनना चाहता था लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि राजनीति में जल्दी आ गया और जल्दी चुनकर आ गया, फाइनल ईयर में था, तो बहुत थोड़ा सा मैं ऑफिस ज्वाइन कर पाया। तो मेरे में अभी वो बाकी है। इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी में जो वकालत की मेरी स्किल है उसका उपयोग आपके लिए करके दोनों गवर्नमेंट्स के पास मेरी सारी कन्विंसिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं जरूर इस क्षेत्र के लिए जो अच्छा हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करूंगा। इतना ही आज के मौके पर मैं कहता हूं। और आपने यहां बुलाकर बहुत दिनों के बाद एक बातचीत का मौका दिया। वैसे तो हमेशा आपसे मुलाकात होती रही है, कई लोगों से होती रही है, लेकिन कई लोग वेबिनार में ऐसे भी हैं कि जिनसे जी भले ही आज नयन भाई को धोखा दे गई, पर टेक्नोलॉजी वैसे हम सबको किस प्रकार से जोड़ सकती है ये डिफिकल्ट टाइम्स में हमारे ध्यान में आया है। इसलिए फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कोविड में आप सारे सेफ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। और कोविड के बाद भी आने वाले कुछ समय तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इतना ही निवेदन आप सबसे करता हूं। Thank you very much, sir.
So we have entire Maharashtra developers together. So 2 मिनट आप मराठी भी हम ये पूरा आपका जो है बताएंगे तो people would like कि मराठी में भी सुनना चाहेंगे. जरूर. अगदी खरं म्हणजे मी या निमित्ताने एवढंच सांगतोय की आपल्या आत्ताच्या कोविडमुळे जे काही प्रश्न आपल्या समोर निर्माण झाले आहेत आणि साधारणपणे मेच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये लॉकडाऊन संपल्यानंतर कदाचित मुंबई आणि पुणे या ठिकाणी काही एरियाजमध्ये डिफिकल्टी राहील, पण ओव्हरऑल महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणात ओपन अप होणार आहे. आणि त्यावेळी आत्ताचा जो काही हा शॉक आपल्याला बसलेला आहे तो ऍब्झॉर्ब करण्याच्या दृष्टीनं आपल्याला वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये त्या ठिकाणी प्रयत्न करावे लागतील. आणि प्रामुख्याने या संदर्भात एकतर बँकिंग सेक्टर जो आहे त्याच्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत, ज्यामध्ये वर्किंग कॅपिटल आपल्याला मिळालं पाहिजे, ज्यामध्ये लोन्सचं रिशेड्युलिंग आपल्याला झालं पाहिजे, ज्यामध्ये पुढच्या काळाकरता आत्ताचा जो शॉक आहे हा शॉक ऍब्झॉर्ब करण्याच्या दृष्टीनं आपल्याला काही इन्सेंटिव्ह त्याच्यात मिळाले पाहिजे अशी आपली सगळ्यांची अपेक्षा आहे. आणि मला असं वाटतं की केंद्र सरकारही आणि RBI त्या दिशेनं काम करते आहे. तर त्या संदर्भात निश्चितपणे मला विश्वास आहे की काही ना काही अजून अनाउन्समेंट झाले आहेत, पण अजून काही अनाउन्समेंट या संदर्भातल्या होतील. हे होत असताना मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांचा GSTचा जो प्रश्न आहे तोही महत्त्वाचा आहे. आणि इनपुट क्रेडिटचा जो प्रश्न आहे तो केंद्र सरकारकडे आणि राज्य सरकारकडे पोहोचवून येत्या काळामध्ये त्यातही मोठ्या प्रमाणात आपल्याला कशी सुधारणा करता येईल हाही प्रयत्न आपण सगळे मिळून करू. यासोबत या संपूर्ण काळामध्ये इज ऑफ डुईंग बिझनेस हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे की ज्यातनं आपल्याला आपलं सेक्टर वेगानं कसं विकसित करता येईल हा देखील प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. आणि यामध्ये आता विशेषतः आपल्या DCRचा देखील विषय आहे, कारण मागच्या काळामध्ये आपण जो आपला कॉमन DCR होता तो कॉमन DCR ज्यावेळेस मी मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस मी त्याला अंतिम मान्यता देऊन तो 1 नोव्हेंबरपासून लागू करा असं सांगितलं होतं, परंतु त्यानंतर सरकारला असं वाटलं की त्यात काही अजून बदल करायचे आहेत म्हणून तो थांबवण्यात आला. मला वाटतं अजून काही इनपुट्स घेतले आहेत, तर आता लवकरात लवकर सरकारकडे आपण विनंती करूया की जे काही त्यांना चेंजेस करायचे आहेत ते चेंजेस करून तात्काळ सरकारने त्याला देखील जी काही मान्यता आहे ती दिली पाहिजे. आणि यासोबत मला असं वाटतं की आता जे काही हे संकट आहे या संकटामध्ये आपल्याला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने विशेषतः राज्य सरकारच्या माध्यमातून मला असं वाटतं की काही अनप्रेसिडेंटेड अशा प्रकारचे निर्णय हे घेण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या विशेषतः रेडी रेकनर दरांच्या संदर्भात, आपल्या स्टॅम्प ड्युटीच्या संदर्भात हे मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मला असं वाटतं की अनप्रेसिडेंटेड रिडक्शन ज्याला आपण म्हणतो, नॉर्मल रिडक्शन नाही. आता नॉर्मल रिडक्शनने हे चालणार नाही, कारण आपल्याला सप्लाय सोबत डिमांडचाही विचार करायचा आहे. डिमांड क्रिएट केल्याशिवाय आज आपलं क्षेत्र हे त्या ठिकाणी तळावर येऊ शकत नाही. म्हणजे एकीकडे आपल्या कंपनीचं जे काही स्ट्रेस्ड ॲसेट आहेत ते तर ठीक करावेच लागतील, पण त्यासोबत ज्याला आपल्याला विकायचं आहे त्याच्याकडे डिमांड क्रिएट करणं हा देखील एक महत्त्वाचा विषय असेल. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या जे काही देणी आहेत याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कट हा काही दिवसांकरता सरकारला किंवा कॉर्पोरेशन्सला किंवा नगरपालिकांना थोडा तोटा सहन करावा लागला तरी चालेल, पण ते कट्स करणं हे मला असं वाटतं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणून त्याही संदर्भातला निर्णय हा येत्या काळामध्ये आपण अपेक्षित करूया. मी शेवटी एवढंच सांगतो की एक आपला सगळ्यांचा वकील म्हणून मी ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या मला समजलेल्या आहेत, ज्या आपण आत्ता कदाचित सांगणार आहात, ज्या आधी सांगितलेल्या आहेत, अशा सगळ्या गोष्टी या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीनं मी निश्चित स्वतः प्रयत्न करेल. आणि आपल्या सगळ्यांच्या सोबत मी नेहमीच राहिलेलो आहे, पुढे देखील मी राहणार आहे. कारण मी विशेषतः MCIच्या आणि क्रेडाला एका गोष्टी करता खूप खूप त्यांचे आभार सगळ्यांचे आपले मानीन की राज्य सरकारने मी मुख्यमंत्री असताना जे जे इनिशिएटिव्ह घेतले त्यात नेहमी आपण पुढाकार घेतला. ते आपल्या क्षेत्राशी संबंधित असो की इतर सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित असो, MCIच्या क्रेडाचे मेंबर हे नेहमी पुढे राहिले. आणि विशेषतः सर्वांकरता घरे याकरता आपण खूप मोठ्या प्रमाणात त्यात कॉन्ट्रीब्युशन केलं. आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला, सातत्याने सरकारला
त्यातल्या जे काही गोष्टी करण्यासारख्या त्या आपण सांगितल्या. आणि म्हणून मी आपल्याला विश्वास देतो की येत्या काळामध्ये आपली अर्थव्यवस्था वेगाने रिकवर होईल आणि चायनामध्ये जो काही अविश्वास आता चायनाच्या संदर्भात जगात सुरू झालाय, त्यासोबत जे ट्रेड बॅरियर्स आता उभे राहणार आहेत, याचा नुकसान नाही, याचा फायदा आपण कसा करून घेऊ शकतो. आणि म्हणून एक शेवटचा मुद्दा जो मला वाटतो, जो अधिकांच्या इंटरॅक्शन मधून आला, तो असा आहे की आता आपण सगळ्यांनी स्वावलंबी होण्याकरता स्वदेशीचा आग्रह धरला पाहिजे. आणि पुढचे वर्ष 2 वर्ष आम्ही जे खरेदी करू ते स्वदेशी कसं असेल याचा प्रयत्न आपण करू. आम्हाला सुट्ट्यांवर जायचं आहे, फिरायला जायचं आहे, तर भारतातच आम्ही कसं जाऊ याचा विचार आम्ही करू. कारण टुरिझम असेल, कन्झ्युमर इंडस्ट्री असेल, याच्यामध्ये जोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात हालचाल होत नाही तोपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था काही वेगाने पुढे जाऊ शकणार नाही. कारण त्यातनं मोठ्या प्रमाणात लोकांना एम्प्लॉयमेंट देखील आहे. आणि त्याचसोबत एक अपेक्षा अशी व्यक्त करूया की IMDने नॉर्मल मान्सून सांगितलेला आहे. नॉर्मल मान्सूनमुळे आपली शेती क्षेत्र चांगल्या प्रकारे विकसित होईल. शेती क्षेत्रामध्ये एक पॉझिटिव्ह ग्रोथ जर आपली आली तर आपल्याला माहिती आहे की शेती क्षेत्रातल्या पॉझिटिव्ह ग्रोथचा ओव्हरऑल कन्झ्युमर डिमांडवर अतिशय चांगला परिणाम होतो आणि याचा एकूणच आपल्या सगळ्या क्षेत्रांवर परिणाम होतो. आणि म्हणून येणारा काळ हा मला चांगला दिसतोय. आता खूप अडचणीत आपण आहोत, पण या अडचणीतही आपण सगळे धैर्य ठेवून ताकदीनं उभं राहा. आपण सगळे मिळून यातनं निश्चितपणे बाहेर पडू. आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि आपण सगळ्यांनी सुरक्षित राहावं, सोशल डिस्टन्सिंग पाळावं आणि भविष्यात देखील किमान पुढचे काही महिने सोशल डिस्टन्सिंग हेच आता न्यू नॉर्मल आहे असं समजून आपण सगळ्यांनी वागावं अशी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो. Sir, thank you very much for your supportive word and guiding on this challenging COVID time and assuring us for taking up our issues at various levels. You have covered almost all major issues which real estate industry is facing today, starting from central bank to reserve bank, strategy, demand creation, GST, and various other issues. Now, I request Nayan Bhai's network was little issue. Now, Nayan Bhai, can we, your network and everything is okay. We can take you further. Can you hear me? Yeah. You could just do it in a brief time. Yeah. Sir, I'm back again. Welcome back. Thank you, sir. Thank you. Sir, you are one of the tallest leaders of Maharashtra, and you have steered the state successfully for 5 years. And you have the respect and regard of all our national leaders, irrespective of which party or which political ideology they have. We as developers are ready to sweat. We know we are in pain, but we are ready to fight. And today we have come before you so that you can hold our hands, hold the hands of all in Maharashtra, and do your best such that not only the ill effects of COVID-19 is mitigated in the shortest possible time, but actually we grow to a speed unseen before, unheard before, and break all records of growth. Sir, I have divided the stimulus needed by us into 4 boxes. The first box is concerning all measures needed for survival, stability, and liquidity for the developers. Vimal Bhai will be dealing with it. The second box is concerning creation of demand, that is increasing the purchasing power of the customer, that is create a great boost in demand. Dharmesh will deal with it, the second box. The third box is of cost of doing business, the viability of doing real estate business, that will be dealt by Bowman. And the fourth box about RERA, about the changes needed in RERA, will be dealt with Mr. Suhas Merchant. Sir, Maharashtra and especially MMR is the most urbanized state in the country, and almost 40% of the real estate in value in the country, about 40% of the home loans in value, and about 40% of construction finance bank loans belong to Maharashtra and in MMR especially. Sir, it is imperative that MMR succeeds.
what happens is, sir, when this stimulus package is seen by RBI or the FM or the central government, they consider the whole country and they think that the flats are available at 20-25 lakhs. So MMR and other tier 2 cities, they get ignored. So, sir, it is very, very imperative that the stimulus package needs to address MMR and Maharashtra. Sir, it is now or never. So with these few words, sir, I now hand over to Deepak Bhai to conduct the proceedings further. Thank you very much. Thank you, Nayan. And sir, we would like to take few questions from our panelists. May I request Satish Magarji, Dada, President CREDAI National, to begin with. सर नमस्कार सर, आज या अशा परिस्थितीत आज आम्ही आपल्याला भेटतोय. मराठीतच बोलतो कारण महाराष्ट्रातले खूप लोक आहेत. सर विषय असा आहे की 2-3 ठिकाणी आम्हाला आपल्या वकिलीची खूप गरज आहे. आरबीआय दर 3 दिवसांनी 4 दिवसांनी पॅकेजेस इश्यू करतात. आज पण आरबीआयचं पॅकेज आलं, पण जे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत ना ते त्या परचेसरला हे पॅकेजचा उपयोग होऊ देत नाहीत आणि त्यांचं वेगळंच चाललेलं असतं. म्हणजे कारण ते फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे, ते पण व्यवसाय करतात. पण ह्या परिस्थितीमध्ये थोडंसं फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सला आपल्याला डायरेक्टिव्ह, नॉट रेकमेंडेशन्स, पण डायरेक्टिव्ह जर एफ एम कडनं आल्या आणि एफ एमचे आपले संबंध मला माहिती आहेत, त्याच्यामुळं त्या पद्धतीने जर आपल्याला उपयोग होईल. सर दुसरी एक गोष्ट अशी व्हायला लागली की आपण आता कॉस्ट इकॉनॉमायझेशन पोस्ट कोविड हा सगळ्यात महत्वाचा घटक होणार आहे. प्रत्येक जण घाबरलेला आहे, बेदरलेला आहे, हे आपल्याला सगळ्यांना ज्ञात आहे. पण काही कंपन्या म्हणजे सिमेंट अँड स्टील इन पर्टिक्युलर आत्ताच पत्र पाठवायला सुरुवात केली की रेट वाढणार आहेत. म्हणजे अजून मालाचा उठावाचा कुठला पत्ता नाही, पण मोठमोठ्या कंपन्या आता पत्र पाठवायला सुरुवात केली की आता रेट वाढणार आहेत म्हणून आम्ही आमचं जुनं कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याशी हे करणार नाही. खरं त्यांना सुद्धा काही दिवस थोडंसं रेटच्या बाबतीमध्ये रॅशनल होऊन जर केलं तर मग आपल्याला कॉस्ट त्या कस्टमरला देता येईल आणि ही आपण आम्हाला मदत करावी अशी आमची खूप इच्छा आहे. नाही बरोबर आहे. दोन्ही गोष्टी ज्या सतीशजी आपण सांगितल्या त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मला देखील हा अनुभव आला की अनेक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स या जे काही आरबीआयने या ठिकाणी रिलॅक्सेशन दिले आहेत ते पास थ्रू करत नाही आहेत आणि म्हणून मी स्वतःही या संदर्भात आरबीआय गव्हर्नरशी बोलणार आहे आणि फायनान्स मिनिस्टरशी देखील या संदर्भातली चर्चा करणार आहे. आणि दुसरा विषय जो आपण सांगितला तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण पुन्हा जर कॉस्ट वर चालल्या गेल्या तर आता डिमांड क्रिएट करायची आणि अशा परिस्थितीत कॉस्ट वाढणं हे काही योग्य होणार नाही. तर जरूर मी योग्य ठिकाणी हा विषय देखील पोहोचवायचा प्रयत्न करतो. थँक्यू. थँक्यू सर. May I request Vimal Bhai to ask questions about? फडणवीस साहब, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच. आपने इतनी सारी हमारी इश्यूज आपने ही एड्रेस कर दिए कि हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं. वी आर लुकिंग टू यू नॉट एज अ लीडर. I mean, we are looking you as a leader, not as a lawyer, for sure. And we know that you will be able to present all our matters before the government, both at state and center, in a much better way than what we can do. So, sir, as a leader, we request you to do. Sir, मेरा ये 2-3 चीजों में मानना बहुत जरूरी है कि फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने नहीं देना चाहिए या बहुत बढ़ जाएगी. वो दर से हम काम नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन अगर इकोनॉमी एक्टिविटी स्टैंड स्टिल पे आ गई तो फिस्कल डेफिसिट इतनी बढ़ जाएगी कि वो मैनेजेबल ही नहीं रहेगी. दूसरा, अगर हमको इकोनॉमिकली बाउंस बैक करना है तो आज जो धंधे में है, ऑल हु आर इन बिजनेस, वी मस्ट प्रोवाइड देम विद द रिसोर्सेज टू सर्वाइव दिस टाइम. अनलेस वी मेक देम सर्वाइव दिस टाइम, वी विल नॉट रिमेन इन बिजनेस. एंड इफ वी डू नॉट रिमेन इन बिजनेस, हाउ डज द इकोनॉमी एक्टिविटी विल बाउंस बैक? देयर आर सर्टेन these are macro level issues which we would like you to represent to the government. Micro level पे सर, जैसे डिमांड के लिए we have to ensure कि आज की तारीख में जो रेडी रेकनर रेट जो इनकम टैक्स के साथ लिंक्ड है, एटलीस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री शुड नाउ डीलिंक इट फॉर सम पीरियड. रेडी रेकनर रेट और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू का इश्यू होता है तो रेडी रेकनर रेट रिड्यूस करने में स्टेट गवर्नमेंट में आपको भी मालूम है सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितना अपोज करता है. बट प्रॉब्लम इज के बिजनेस करने के लिए रेडी रेकनर रेट के साथ लिंक करके बिजनेस नहीं हो पाएगा सर. सो माय रिक्वेस्ट इज के फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये पॉइंट पे ऊपर बहुत जल्दी लेना चाहिए कि फॉर फ्यू इयर्स टू कम और एटलीस्ट फॉर 1 or 2 years टू कम
बिजनेस शुड नॉट बी लिंक टू रेडी रेकनर एट ऑल। तो ये अपने को कोई भी हालत में करना चाहिए। सर दूसरा इश्यू ऐसा है कि कॉस्टिंग जो इतनी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेडी रेकनर रेट एंड लैंड रेट ऑफ रेडी रेकनर रेट इज बीइंग इंक्रीज एडॉप्ट। सर इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। डिमांड साइड पे नौकरियां बचे, नौकरियां टिकी रहे, उसके लिए स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस को सबको अलग। अभी आज क्या हो गया सर, बैंक के पास 7 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पड़ा है जो बैंक लैंड नहीं करी है, बिकॉज आज जो रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ दिया वो उन्होंने AAA में बांट दिया। तो जो मीडियम बिजनेसमैन है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, किसी के पास वो बेनिफिट जा ही नहीं रहा है। तो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां नौकरी सबसे ज्यादा बच सकती है, वहां वो पैसा जा नहीं रहा है और बैंक 7 लाख करोड़ पार्क कर रही है और इसके लिए इंटरेस्ट रेट भी घटा नहीं रही है, क्योंकि वो 7 लाख करोड़ पे 4% ही मिलता है और दे आर सेइंग अवर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी हाई। सो दे आर प्लेइंग विथ अस। सो वी रिक्वेस्ट यू टू टेक अप ऑल दिस इश्यूज स्ट्रांगली with bank, with finance ministry and with chief minister of this state to bring down the cost and to ensure that the lending happens. बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। विशेष रूप से फिस्कल डेफिसिट के नॉर्म्स से रिलैक्स होंगे। सिर्फ इतना ही है कि आप भी जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट के नॉर्म रिलैक्स करते हुए हमको साथ साथ एक मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी भी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है या फॉरेन इन्वेस्टर होता है, ये हमेशा ये देखता है कि हमारा फिस्कल डिसिप्लिन कितना है। तो अगर हम केवल फिस्कल डेफिसिट के नॉर्म्स रिलैक्स करें और उसके साथ साथ अगर हम मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी अगर तैयार नहीं करें कि हाउ आर वी गोइंग टू कम बैक, अगर हम 3% की जगह हम लोग 5% तक, 4% तक, 5.5% तक रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो हमारी 5 साल की स्ट्रेटेजी क्या है, 3 साल की स्ट्रेटेजी क्या है कि कैसे हम वापस 3% पर आएंगे। ये जब तक हम स्ट्रेटेजाइज नहीं करते, क्योंकि एक और हम यहाँ पर बड़े पैमाने पर रिलैक्स करेंगे और दूसरा हमारे यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट्स है वो या तो बाहर निकल जाएंगे या नई इन्वेस्टमेंट आना बंद होगा। इसका बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, लेकिन 100% फिस्कल डेफिसिट नॉर्म्स जो है उसको रिलैक्स करना पड़ेगा और वो सरकार के पूरे ध्यान में है। वो नॉर्म्स निश्चित रूप से मेरे हिसाब से रिलैक्स होगी। बैंकों के बारे में आपने जो बात कही, मुझे लगता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मतलब इन्फ्यूज लिक्विडिटी, क्योंकि डिमांड क्रिएट करने के लिए लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुए सिवा डिमांड भी क्रिएट नहीं हो सकेंगे और सप्लाई साइड मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि जितने प्रकार के इंटरमीडिएटरी है सबका उपयोग करते हुए ये करना पड़ेगा। और इस आरबीआई का जो रोल है, जैसे इससे पहले भी कहा गया कि मुझे भी यह लगता है और मैं स्वयं आरबीआई गवर्नर से बात भी करूंगा कि आरबीआई कैन नॉट बी जस्ट रिकमेंडेटरी बॉडी, या हमने डीरेगुलेट कर दिया या हमने आपको एक विंडो ओपन कर दी है, नाउ यू एक्ट। अब ये स्थिति नहीं चलेगी, तो ये बोलना पड़ेगा कि ये विंडो ओपन के करना ही पड़ेगा, नाउ यू हैव टू एक्ट। ये करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जरूर ये चीजों को पहुंचाने की कोशिश में करूंगा। थैंक यू सर। मैं इनवाइट शांतिलाल कटारिया जी, वाइस प्रेसिडेंट क्रेडाई नॅशनल। सर नमस्कार। सर आपण इतके अभ्यासू आहात आणि आपल्या या संपूर्ण भाषणामुळे मला वाटतं आपण प्रत्यक्ष असतो तर खूप वेळ टाळ्यात वाजवल्या गेल्या असत्या। सर मी 2017 ते 19 क्रीडा महाराष्ट्राचा अध्यक्ष होतो। आपण आम्हास केलेले सहकार्य व केलेली आमची कामे आम्ही कधी विसरू शकत नाही। सर आपण दोन्ही वर्षे रेडी रेकनरचा दर सेम ठेवला तरी देखील सरकारचं उत्पन्न वाढलंच। व्हॅट इंटरेस्ट वेवर आपण दिलात, सक्षम अनुभवी रेरा अथॉरिटी दिलीत, क्रीडा महाराष्ट्राच्या 4 वेळा आपण प्रोग्रामना आलात। सर आपल्या अभ्यासू वृत्तीमुळे, आपल्या अनुभवामुळे मला वाटतं की आपण महाराष्ट्रात सर्वात जास्त रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट असल्यामुळे सर्वात जास्त फटका या स्थितीचा महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला आहे। अशा वेळी या क्षेत्राला वाचविण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, ग्राहकांसाठी सर खालील गोष्टी करणं आवश्यक आहे। आपणाला रेडी रेकनरचे दर सर यावेळी कमी करावे लागतील, स्टॅम्प ड्युटी कमी करावी लागेल, प्रीमियम्स कमी करावे लागतील, त्यासोबत ते इन्स्टॉलमेंट्स मध्ये घ्यावे लागतील। अपफ्रंट कुठलेही प्रीमियम घेऊ नयेत।
UDCPR आपण म्हणालात तसा लवकर सँक्शन व्हावा. सर, जीएसटी इनपुट टॅक्स हा आमच्या सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आपण हाती घेतलेला आहे. त्याच सोबत 45 लाख रुपयापर्यंत सर 1% जीएसटी आहे. त्याची मर्यादा 75 लाखापासून मुंबई सारख्या शहरासाठी 1 कोटी रुपयेपर्यंत वाढवणं आवश्यक आहे. सर, आपणाला जीएसटी काउन्सिल आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट सर्वांना जीएसटी विषयी आमच्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात आपली त्या ठिकाणी सहकार्य लागणार आहे सर. कारण त्याचसोबत बँकांचा हाऊसिंग होम लोन साठीचा इंटरेस्ट रेट जर कमी झाला तर देशामध्ये मला असं वाटतं की कंझ्युमर डिमांड वाढेल, जे आता काळाची गरज आहे. सर, आपला एकंदरीत अनुभव पाहता या गोष्टीसाठी आपणाकडून खूप अपेक्षा आहे. नक्की आपण सांगितलं त्याच्यावर काम करू. आणि मी तर मगाशी देखील म्हणालो की माझं तर मत असं आहे की आता एफडी रेकनर दरामध्ये अनप्रेसिडेंटेड कट केला पाहिजे. अनप्रेसिडेंटेड म्हणजे एक ज्याला आपण शॉक ट्रीटमेंट म्हणतो अशी कमतरता आणली पाहिजे तरच. आणि त्यातला सनसेट क्लॉज टाकला काय आहे की एक विंडो ठेवली की एवढ्या दिवसांकरता आम्ही केलाय तरच डिमांड वाढते. त्यामुळे ते डिमांड वाढण्याकरता एकीकडे इन्सेंटिव्हाइज करावं लागतं आणि दुसरीकडे शॉर्टेजही करावं लागतं. दोन गोष्टी एकत्रित केल्या तरच ती डिमांड वाढते. तर माझं मत बिलकुल हेच आहे आणि ते नक्की पोहोचेल. थँक्यू सर. It's a very good suggestion. Now I request Ramesh Singh, past president CREDA MCHI. सर, सर्वप्रथम तो इस कोविड का आपने बहुत अच्छा उपयोग किया है, तो बहुत फिट और अच्छे लग रहे हैं सर. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर. सर, मैं थोड़ा सा विमल से डिफर हो रहा हूँ. इतने सालों में एक चीज हम सीखे हैं कि केस कितना भी अच्छा हो, अगर काउंसिल स्ट्रांग नहीं हो सर तो कोई केस का मीनिंग नहीं होता है. तो आपसे बेटर काउंसिल हम पूरे देश में अगर ढूंढने निकले तो नहीं मिलेगा सर. सो व्हाट यू सेड आई थिंक इज सच अ बिग रिलीफ टू अस कि अगर आप एडवोकेसी करेंगे सर, बिकॉज यू आर अमंग्स द यूनिक लीडर्स हु अंडरस्टैंड्स द गवर्नमेंट साइड परफेक्टली एंड द बिजनेस साइड परफेक्टली. एंड आपने हमेशा हमें इन 5 सालों में ये सिखाया कि बिजनेस चलेगा तो गवर्नमेंट चलेगी एंड तो रेवेन्यू आएंगे गवर्नमेंट के पास भी. एंड जैसे आपने कहा सर, इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम. सर, अगेन आपके वक्तव्य की विशेषता ये थी, हमने सब इस सेमिनार के लिए तैयारी करके 20-25 क्वेश्चन बनाए थे. जैसे आप बोलते कि एक क्वेश्चन के ऊपर ऐसा क्रॉस लगता है, एक्चुअली स्पीकिंग कोई क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास, लेकिन विल बी फॉर रेपिटेशन अभी आई विल जस्ट रिपीट. सो एज एवरीबॉडी सेड सर, एक सर डिमांड साइड कैसे हम एड्रेस करें सर. वन वेरी गुड और सिंपल मैकेनिज्म फॉर दैट कैन बी, पहले सर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट ऑन होम लोन्स होता था वो इनकम टैक्स में उसकी छूट मिलती थी सर. इफ दैट फॉर अगेन समटाइम्स फॉर द नेक्स्ट 5 years जो भी फ्लैट परचेज हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाए, that will be allowable expenditure in his books. It can be a simple thing sir, लेकिन बहुत बड़ी डिमांड उससे क्रिएट हो सकती है सर. सेकेंड, जीएसटी का सर सबने कहा है एंड आपने खुद उसका मेंशन किया सर, इनपुट क्रेडिट आना बहुत Unable to hear Dharmesh. So if you could just reply to his question. नहीं, मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है. और जो आखिरी बात उन्होंने इंटरेस्ट इसके बारे में जो कहा है, डिमांड क्रिएट करने के लिए बैंकों ने जो करना चाहिए, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है. उसके लिए भी हम लोगों को बातचीत तो करनी पड़ेगी. Thank you, sir. Now I request Shri Rajiv Parekh. Sorry, Deepak, I think I got cut off. There was one other thing that I needed to take up as per the list given to me. Hello? Yeah, continue, please. Yeah. Sir, एक दूसरा Reserve Bank has come out with a SWAHI fund जो SBI ने बनाया है, which is for stress assets. Sir, clearly, sir, आपने ऐसे कहा, the good thing is in real estate there are number of projects which are still viable. सिर्फ उसका टाइम साइकिल गलत हो गया, उसकी वजह से रिस्पेक्टेड डेवलपर को अपने बैंक के साथ प्रॉब्लम हुआ है. तो आज भी there are hundreds and thousands of projects across the country and especially in Maharashtra and MMR जो viable है. तो SWAHI fund needs to be extended and आज उसमें 25,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई है, लेकिन
definitely should be that लागत उसमें increase होनी चाहिए, and different banks should be also encouraged to come up with stress fund. Second, sir, मुंबई में वो limit is 2 crore rupees. So मुंबई के लिए specifically that limit should be increased to 5 crore rupees, sir. Correct. जहाँ भी project viable है, नहीं तो वो पूंजी निवेश नष्ट हो जाएगी, sir. So SWAI fund should be in Mumbai applicable, and for the limit should be increased to 5 crore rupees. And last, sir, जैसे आपने बताया sir, repo rate last 18 महीने में 240 basis point कम हुआ है, अभी further 75 basis point कम हुआ है, लेकिन that has not been passed on to the developer, sir. So उसमें भी if it gets passed on again, इस time में वो बड़ी राहत रहेगी. Thank you, sir. Very valid suggestions. Very valid suggestions. I request Rajiv Parekh, President CREDAI Maharashtra. नमस्कार सर. नमस्ते जी. नमस्ते सर. आमच्या सगळ्या बांधकाम मित्रांनी बऱ्यापैकी फायनान्स आणि ह्या टॅक्सेशन विषयावरती बोललेले आहेत. तर माझा विषय बऱ्यापैकी इज ऑफ डुईंग बिझनेस या विषयाशी आहे. आपण ज्यावरती बऱ्यापैकी आपल्या भाषणात सांगितलेलं आहे, ही संकल्पना खरोखर चांगली आहे आणि आपण देखील गेल्या 5 वर्षामध्ये खूप त्याच्यावरती भर दिला होता. परंतु ज्या पद्धतीने त्याची ऍक्शन व्हायला पाहिजे तशी शासनामध्ये अजून ऍक्शन नाही. बऱ्यापैकी अजून रेड टेपिझमचं थोडंसं त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आहे. तर मला आपल्याला अशी विनंती करायची आहे की नवीन युनिफाईड DCPR जो काय मंजूर होणार आहे त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी ऑनलाईन सॉफ्टवेअर मंजूर व्हावा, जेणेकरून मानवी हस्तक्षेप कमी होईल, वेळ वाचेल लोकांचा. त्यासाठी आपण विरोधी पक्ष नेता म्हणून आपण याच्यावरती खूप आमच्यासाठी काम करावं अशी आमच्या पूर्ण महाराष्ट्रातील लोकांची विनंती आहे. त्याचबरोबर बऱ्याचशा प्रक्रिया आपण ऑनलाईन करू शकतोय, जसे ऑटोमॅटिक NA ही प्रक्रिया देखील आपण त्याच्यामध्ये ऑनलाईन करू शकतोय. रॉयल्टी ऑफ एक्स्टिवेशन ही देखील प्रक्रिया आपण ऑनलाईन करू शकतोय. अशा बऱ्याच ठिकाणी जर ही इज ऑफ डुईंग सगळी व्यवस्था झाली तर बांधकाम प्रकल्प जे रखडत आहेत त्याचा कालावधी कमी होईल आणि लवकरात लवकर लोकांना सँक्शन पुढे जायला चालना मिळेल. थँक्यू. नाही, अगदी बरोबर आहे. आणि आपण नवीन DCPR करताना त्यात ही अटच ठेवली होती की हा DCPR लॉन्च करताना त्याच्या सगळ्या मॉड्यूल्स हे तयार करूनच आपण करायचा, जेणेकरून हा ऑनलाईनच असला पाहिजे. आणि आपलं म्हणणं बरोबर आहे, जोपर्यंत ह्युमन इंटरव्हेन्शन आपण संपवणार नाही, जसं आपल्या सगळ्या लोकांच्या प्रयत्नातनं आपण मोठ्या प्रमाणात मुंबईतलं ह्युमन इंटरव्हेन्शन पहिल्यांदा संपवू शकलो. संपलं असं म्हणणार नाही, पण मोठ्या प्रमाणात संपलं तर त्याचा फायदा होतोच. त्यामुळे असा सगळीकडेच आपल्याला ते संपवलं पाहिजे. Thank you, sir. I request Baman Irani, Vice President CREDAI Nation, for this question. साहेब नमस्कार. सगळ्यांनी सगळं सांगितलंय, आपण पण फार बोललात, त्याचा आपण आभारी आहोत. साहेब जे इन्कम टॅक्स रिलीफचे जे धर्मेश भाई म्हणाले ते त्याच्यावर एक सीलिंग असतं, 2 लाख 5 लाख ते काय, ते सीलिंग काढलेलं पाहिजे. लोकांना जेवढे मोठे मकान घ्यायचे असेल त्यांना जे काय फायदा होत असेल, फक्त रिअल एस्टेट तो सेक्टर आहे जो हे सगळी तुमची चक्रव्यूह जो आहे तो तोडून पुढे देशाला घेणार आहे. आणि साहेब मुंबईसाठी आणि आमच्या रिडेव्हलपमेंट सेलसाठी जे आमची एक फार मोठी संख्या डेव्हलपर्सची आहे, त्यांना साहेब आपल्याला माहित असेल रिडेव्हलपमेंट मध्ये GST दोघे साईडला लागतं, रिडेव्हलपमेंटच्या पोर्शनला पण आणि इकडे पण. आणि GST गेल्यानंतर त्यांना 2 डबल मार पडलेली आहेत. आणि साहेब एक आणखी सांगायचं होतं त्यांच्याच वती, हे रिडेव्हलपमेंट जेवढे लोक करतात साहेब, त्यांना हे प्रीमियम जे आपण भरतात आता, दे आर सो हाय, त्यांना हे परवडत नाही. लास्ट 2 वर्षापैकी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी पैसे तोडले आहेत. ह्यांना इमिडिएटली साहेब काय म्हणतात ते, मेडिसिन गिव्हन टू लेट इज ऑफ नो यूज. ह्यांना इमिडिएटली जेवढं फास्ट आपण हे एक सवय दिली, इट विल बी बिग बेनिफिट. की ऍटलीस्ट आपण जे म्हणतात 50% तुम्ही रेडी रेकनरचे रेट ऍटलीस्ट डीलिंग करा, रेडी रेकनरचे रेट, नाहीतर 50% लँड रेट करून टाका, लेस 50% लेस सर. आणि दुसरं साहेब एक एम्प्लॉयर साठी, आपण एम्प्लॉयर आहोत सगळे, एम्प्लॉयर साठी गुड न्यूज आपण लवकरात लवकर केली नाही सर, तर आम्ही सगळे डेव्हलपर वती मी आपल्याला सांगतोय, आम्ही सगळे बघतात की 50% कमी, 10% कमी, लोकांना कमी करायची बोलणी चालू आहे. हे तुम्ही, इट इज आवर रिक्वेस्ट साहेब, आपणच बंद करू शकणार. प्लीज टेक अ डेलिगेशन अक्रॉस टू आवर ऑनरेबल FM ऑल्सो, आणि विल बी व्हेरी व्हेरी हॅपी टू कम अलॉंग. Sure, I'll do that. Thank you. Thank you, sir. I'll request Suhas Merchant, President CREDAI Pune.
सर नमस्कार. रेरामध्ये सर आम्ही सगळं ऍज पर स्पेसिफिकेशन, ऍज पर एरिया, ऍज पर अम्युनिटी सगळं द्यायला तयार आहोत. आम्हाला 2 गोष्टी पाहिजेत. आता महारेराने 3 महिन्याचं एक्सटेन्शन दिलेलं आहे. 3 महिन्याचं एक्सटेन्शन इज इनसफिशियंट. 2 महिने तर ऑलरेडी झाले. हे एक्सटेन्शन 1 वर्षासाठी झालं पाहिजे. महारेरामध्ये आणखी एक क्लॉज आहे की कुठल्याही केसमध्ये 1 वर्षापेक्षा मोठं एक्सटेन्शन मिळू शकत नाही. हा क्लॉज आता 4-5 वर्षासाठी तरी बाजूला ठेवला पाहिजे. सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे हे 2 गोष्टी आहेत रेरासाठी. आणखी एक रिक्वेस्ट अशी आहे की रेरामध्ये एकदा अग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर केल्यानंतर त्याची अमाऊंट बदलता येत नाही. आधी मोफामध्ये देयर वॉज अ प्रोव्हिजन की इन्फ्लेशन असेल किंवा मटेरियल रेट वाढले तर देयर वॉज अ फॉर्म्युला बाय विच वी कुड इन्क्रीज द रेट. तर काहीतरी एक रिझनेबल फॉर्म्युला आणला पाहिजे, नाहीतर डेव्हलपरना त्या अर्लियर रेटमध्ये ते डेव्हलप करणं आणि देणं अशक्य होऊन जाईल. बरोबर. पुढचा मुद्दा सर, रेरामध्ये 2च गोष्टी आहेत. पुढचा मुद्दा, आपण सगळे लोक रेडी रेकनर बद्दल बोललो. अशी पॉसिबिलिटी आहे का की 1 वर्षासाठी रेडी रेकनर बाजूलाच ठेवून द्या, कमी वगैरे काही नाही, त्याला बाजूलाच ठेवून द्या. आय टेल यू सेल विल इन्क्रीज. त्याच्यामुळे त्याच्या नोट्समुळे खूप डिस्टर्बन्स होतो, लोकांना त्रास होतो. त्यामुळे रेडी रेकनर 1 वर्षासाठी बाजूला ठेवा. ही माझी स्ट्रॉंग रिक्वेस्ट आहे सर. रिअल इस्टेट बिझनेस विल बूम. तिसरा मुद्दा साहेब, ते BOCW मध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा ऍक्ट असल्यामुळे स्टेट गव्हर्नमेंटला फार चॉईस नाहीये. त्याच्यामधले जे बेनिफिट वर्कर्सना द्यायचे आहेत ते डिव्हिजनल कमिशनरला असाइन करा. म्हणजे सिंपल गोष्ट सांगतो की मिड डे मील द्यायचं असेल, त्याच्याऐवजी ग्रेन द्यायचे असतील तर ती अथॉरिटी कोणाकडे नाहीये. त्याचप्रमाणे वर्कर्सला काही बेनिफिट द्यायचे असतील तर ते काही पिरियडसाठी त्या सगळ्या अथॉरिटीज डिव्हिजनल कमिशनरला डेप्यूट करून त्यांना देऊन टाका की ते डिसिजन घेतील डिपेंडिंग अपॉन द लोकल रिक्वायरमेंट. पुढचा मुद्दा असा आहे सर, काही पिरियडसाठी डिझेलचा रेट कमी करता येईल का? सेंट्रल गव्हर्नमेंटला फायनान्शियल प्रोव्हिजन आहे तर डिझेलचा रेट कमी केला तर ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट कमी होईल. आय एम अगेन सेइंग दिस इज सेन्सेट क्लॉज. प्रत्येक गोष्टीसाठी एक पिरियड ठेवता येईल आणि त्यामुळे ट्रान्सपोर्ट कमी होऊन जाईल, कॉस्ट. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. तुम्ही एक फार जी मागणी केली आहे ती अत्यंत बोल्ड आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंटमध्ये राहिलो आहे त्यामुळे गव्हर्नमेंट ती त्याच्यावर किती विचार करू शकेल मला माहिती नाही, पण रेडी रेकनर रेट बाजूला ठेवा ही मागणी अत्यंत बोल्ड आहे. ही त्याचे काय इफेक्ट होतील याचा विचार आज तरी सांगता येत नाही, पण मला असं वाटतं की गव्हर्नमेंटमध्ये एवढी हिंमत आहे, म्हणजे मी जरी असतो तरी सांगतो, म्हणजे असं हे गव्हर्नमेंट आहे म्हणून नाही, तरी एवढी हिंमत आहे असं मला वाटत नाही. देर हॅज टू बी सम बेसिस. तर मला असं वाटतं की असंच काहीतरी विचार आपल्याला आउट ऑफ द बॉक्सच करावा लागणार, एवढं मात्र नक्की. सर एक रिप्लाय देतो. आपण फार जोरात पळतो, परंतु वाघ माग लागल्यानंतर आपण भिंतीवर सुद्धा उडी मारतो. त्याला हिंमत नाही, सिच्युएशन असते. करेज लागेल आणि तीच परिस्थिती आज आहे सर. ते करेज गव्हर्नमेंटला लागेल. आपल्याला जर रिअल इस्टेट बूस्ट करायची असेल तर आउट ऑफ बॉक्स सोल्युशनच काढावे लागतील सर. करेक्ट करेक्ट. व्हेरी वेल सेड. थँक्यू. थँक्यू सर. रिक्वेस्ट श्री अनंत राजेगावकर, क्रीडा नेशन. सर नमस्कार. सर आपण मुख्यमंत्री असताना मोठ्या प्रमाणावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम हाती घेतलं, जसं समृद्धी हायवे सारखा एक अम्बिशियस प्रोजेक्ट घेतला. तर सर आता रिअल इस्टेटला बूस्ट देण्यासाठी अर्बनायझेशन पण होणं गरजेचं आहे आणि लोकांच्या मनामध्ये हेल्थच्या बद्दल एक भीती निर्माण झालेली आहे. आणि भारताचा जो काय हेल्थचा इंडेक्स आहे 120 नंबर आहे, जसा 169 देशांचा जो सर्वे झाला त्याच्यामध्ये. आणि आपण आत्ताच बोललो की फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट येण्याच्या दृष्टीने भारताने पुढे प्रयत्न करायला पाहिजे. तर आपलं ह्या सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा हेल्थ सर्व्हिसेसच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बद्दल भारताने पुढे काय केलं पाहिजे असं आपलं मत आहे? नाही, अतिशय महत्वाचा विषय आपण या ठिकाणी मांडला आहे. एक तर बघा, कितीही वाईट परिस्थिती असली तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हे बंद नाही झालं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही समजा आज फिस्कल डेफिसिटचे नॉर्म्स रिलॅक्स कराल,
सगळ्या गोष्टी कराल आणि जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण तयार केलं नाही तर जे काही आपल्याला मूळ पदावर इकॉनॉमी आणायची आहे ती काय आणता येणार नाही. म्हणून त्याचे ऑप्शन्स हे शोधावेच लागतील. आपण बघितलं असेल तर सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर जवळजवळ संपूर्ण युरोप पूर्ण डिव्हॅस्टेटेड होतं आणि त्यावेळी जो मार्शल प्लॅन आला आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी झाले आणि 3 वर्षात युरोप ज्या प्रकारे त्या काळामध्ये उभं राहिलं ते आपण सगळ्यांनी बघितलं आहे. त्यामुळे शॉर्टकमिंग्स निश्चित लक्षात आले. हे निश्चितच लक्षात आले मोठ्या प्रमाणात शॉर्टकमिंग्स आहेत आणि अशा प्रकारचा एखादा रोग आल्यानंतर आपण त्याचा सामना करायला किती इल इक्विप्ड आहोत हे देखील यातनं आपल्या लक्षात येत आहे. म्हणून त्याचं एक नवीन डिझायनिंग आपल्याला करावं लागेल आणि हे करत असताना आता आपण बघितलं असेल तर जगामध्ये अशा प्रकारच्या एपिडेमिकला पॅन्डेमिकला समोर जात असताना फ्रंटलाईन जी काही डिफेन्स सिस्टीम आहे ही मेडिकल टेक्नॉलॉजीनी घेतलेली आहे. त्यामुळे आपल्याला आपल्याही देशामध्ये आता फ्रंटलाईन डिफेन्स सिस्टीम करता मोठ्या प्रमाणात मेडिकल टेक्नॉलॉजीचा वापर आपल्या आरोग्य व्यवस्थेत कसा करता येईल हा देखील विचार आपल्याला येत्या काळामध्ये करावा लागेल आणि त्याच्यावरचा आपला जो खर्च आहे तो देखील आपल्याला वाढवावा लागेल आणि एक सिस्टमॅटिकली म्हणजे गोल ठरवून आपल्याला की कशा प्रकारचे आपल्याकडे रोग आले आहेत अपेक्षित आहेत काय करावं लागतं कुठे आयसोलेशन करावं लागतं आणि त्याच्या आधारावर आपल्याला आपलं पुढचं प्लॅनिंग करावं लागेल. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. Any other question from panelists? Deepak, I would like to take 1 minute. Yeah, please. We just got a request yesterday evening from Honorable Commissioner that there are a number of hospitals in Mumbai which can take up COVID-19 patients, but we are falling short of PPE kits. And hence, these beds are ready, but they can't be put to use. So by this webinar, I appeal to all our CRIDA MCHI members that we need about 15 to 20,000 PPE kits. Each PPE kits costs about 952 rupees. And we all have, most of us have got our environmental clearance approval from MOEF. And under that, we have to spend what is known as the Corporate Environmental Responsibility Fund, CER fund. So whatever donation you give for this is eligible to be set off against that CER fund. So I request members to please contact Mr. Satish Kumar of CRIDA MCHI or Dominic Rommel, who is coordinating all this, and ensure that these PPE kits come and hundreds of beds as per this will become available immediately for the treatment of the COVID-19 patients. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dan. Now I invite Sri Jayesh Bhai, Jayesh Shah, Special Project CRIDA MCHI, to say a vote of thanks. Thank you. Sir, on behalf of 1,800 members of CRIDA MCHI, I thank you for taking out the time today to join us. This webinar has, on last count, it had 3,600 members, participants across various platforms. Coming to the point, sir, Maharashtra means a great state. Unfortunately, because of the COVID, we have been reduced to a very precarious position with the highest number of cases. We are also the financial capital. So not only is the physical health, but financial health also affected of our people. So I was going to request you to take up our issues, but you have yourself taken this up. So to cut short the talk, what I want to say is that we are looking forward, all of us, we look forward to taking up the issues with the central and state government with a great leader and lawyer. And together, I'm sure that we'll be very successful. Thank you very much, sir. Together, let us make Maharashtra great again. Thank you. Thank you. Just Deepak, one request. I've jotted down all the main points, but if you can also send me a note based on today's discussion points, I think that will be very useful for me. Sure, sir. We'll definitely do it by today evening if possible. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Abhari, sir. Thank you. Abhari.
Thank you. Thank you. Nayan bhai. Hello. Yeah. Nayan bhai, can you hear me? Yeah, I can hear you. I can hear you. I can hear you, Suhas bhai. I can't hear you. You, Suhas He's bhai. still online. I'm saying that we should push for no ready reckoner for 1 year. You can understand the benefits. Right. So Lot why of don't properties will get sold. Hello, why don't you send immediately a representation in a 1 hour to Deepak Gorodia and to us, so we can incorporate that point. Yeah, sure. I'll send it to you. Okay. Thank you. Deepak bhai, you understood, na? Behind this, Yeah. there is a benefit. Yeah. Sale will increase. I understood. No need to elaborate. Okay. Thank you. Thank you all. With this, we Thank you end very today's much. session. Before logging off, I would like to announce tomorrow's webinar. Episode 13, Retail Resurrection Post-COVID-19. With Mr. B.S. Nagesh, Chairman, Shoppers Stop, Mr. Atul Ruya, MD, Phoenix Mills, Mr. Ajay Bijli, Chairman, PVR Limited, moderated by our very own Mr. Anuj Puri, Chairman, Anurag Group. Don't forget to register. Thank you. Great. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Dhruvi. Thank you.